Good morning, little champs. Welcome in the EVS class. Students, you all are doing your EVS work very sincerely, and that is very appreciable. Very good. बेटा, लाइफ में हर रोज आप एक न्यू स्टेप में कदम रखते हो और कुछ नया सीखते हो, बट हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे या कोई भी काम नहीं कर सकते. हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर यही सोचना है कि यस, आई कैन डू दिस वर्क और आई विल डू माई बेस्ट. अगर आप ऐसी सोच से अपना वर्क करोगे तो आप हर काम आसानी से कर लोगे. तो आज की स्टडीज शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट आवर प्रेयर. सो क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स. स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Students, today we will start our new chapter, that is social insects living together. So we will start reading part. You can also read with me. Like humans, insects such as ants, honeybees and termites live together in groups. These insects are called social insects. फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ants. ants के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम. Ants build an underground nest for their living. They dig into the soil and make ant hills. इनके घरों को हम ant hills कहते हैं. They live like a family. जैसे हम फैमिली में रहते हैं वैसे ही एंट्स भी फैमिली में रहती है. दे डिवाइड वर्क अमंग देमसेल्व्स. द एंट्स कम्युनिकेट बाय टचिंग ईच अदर विद देयर एंटीना. एंटीना होता है बेटा इनके पास और इसकी मदद से ये आपस में बातचीत करती हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं. द एंट्स आर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स. First is the queen ants, the male ants and the worker ants. First we will read queen ant. The queen ant is an adult female.
and the mother of all other ants. She is the largest in size and lays eggs. Next type of ant is male ants. Male ants have wings. They have a short life. Next type of ants is worker ants. Most of the eggs laid by the queen grow up to become wingless, sterile females. These are worker ants. They collect food, guard and clean the nest. They lack wings unlike queen and male ants. Next social insect is हनी बीज. अब हम हनी बीज के बारे में जानेंगे कि वो कैसे रहती है. हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट्स. दे लिव इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कॉल्ड हाइव. इनके ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम हाइव कहते हैं. बीज मेक बी हाइव्स. दे प्रोड्यूस वैक्स टू मेक हाइव्स. जब ये हाइव्स किस चीज़ से बनाते हैं? ये एक वैक्स प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से और उससे अपना छत्ता बनाते हैं. हनी बीज आर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स. अब ये भी 3 तरह की होती है बेटा. द क्वीन बी, वर्कर बी एंड द ड्रोन बी. ड्रोन बी को बेटा हम मेल बी भी कहते हैं. बिसाइड्स एंड्स एंड बीज सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, lions, zebras and giraffes also live and move in groups for the following reasons. First reason is to protect themselves from enemies. Second, to groom the young ones. Third, in search of food and water. Now बच्चे, see the animation part of this chapter and understand this chapter properly. Social insects living together. Like humans, insects such as ants, honeybees and termites live together in groups. These insects are called social insects. Ants. Ants build an underground nest for their living. They dig into the soil and make ant hills. They live like a family. They divide work among themselves. The ants communicate by touching each other with their antennae. The ants are of 3 distinct types: the queen ants, the male ants, and the worker ants. Queen ant. The queen ant is an adult female and the mother of all other ants. She is the largest in size and lays eggs. Male ants. Male ants have wings. They have a short life. Worker ants. Most of the eggs laid by the queen grow up to become wingless, sterile females. These are worker ants. They collect food, guard and clean the nest. They lack wings unlike queen and male ants. Honeybees. Honeybees are social insects. They live in a very organized group called hive. Bees make beehives. They produce wax to make hives. Honeybees are of 3 distinct types: the queen bee, worker bee, and the drone bee. Besides ants and bees, some wild animals like elephants, lions, zebras, and giraffes also live and move in groups for the following reasons: to protect themselves from enemies, to groom the young ones, in search of food and water. These are the new words of this chapter. First word is social. 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 इसका मीनिंग है सामाजिक. समाज में रहते हैं हम लोग, मिलजुल के रहते हैं, तो हमें सोशल कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेट. कम्युनिकेट. COMMUNICATE. जब हम किसी को बात करते हैं या किसी की बात सुनते हैं
तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं और हम उसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। मैंने जैसे कोई आपको बात कही तो मैंने आपसे कम्युनिकेट किया। थर्ड वर्ड इज बीहाइव, BEEHIVE। बीहाइव किसको कहते हैं बेटा? मधुमक्खी के छत्ते को, जहां मधुमक्खी अपना घर बनाती है उसको हम बीहाइव कहते हैं। लास्ट वर्ड इज गार्ड, GUARD। गार्ड मीन्स टू टेक केयर ऑफ, किसी की रक्षा करना। बेटा नाउ आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोशल इंसेक्ट। लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स भी बेटा ग्रुप्स में रहते हैं। सोशल का मीनिंग मैंने बताया था, जो लोग ग्रुप्स में रहते हैं उनको हम सोशल कहते हैं। हम ह्यूमन बींग्स, आप लोग कॉलोनीज में रहते हैं ना, नेबर्स ग्रुप भी होते हैं साइड में आपके घरों के पास, और आप क्लास में भी ग्रुप्स में रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। वैसे ही बेटा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक एलिफेंट्स को देखा होगा आपने, वो भी ग्रुप्स में चलते हैं। टर्माइट्स हो गया, जो दीमक लग जाती है, वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। और आपके हनी बीज, जो आपकी मधुमक्खी होती है, वो भी ग्रुप्स में घूमती है और ग्रुप्स में ही रहना पसंद करती है। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स को हम सोशल ऑर्गेनिज्म या सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। एंड द फर्स्ट एग्जांपल वी विल टेक एंट्स। एंट्स भी ग्रुप्स में रहती हैं। वो कैसे रहती हैं? अपना काम डिवाइड करके रहती हैं बेटा, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रहती हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, लाइन में चलती है। आपने सबसे पहले इनका देखो, लाइफ में बहुत डिसिप्लिन होता है बेटा, डिसिप्लिन में रहती हैं, लाइन में चलती हैं और अपना वर्क डिवाइड करके चलती हैं। अब डिवीजन ऑफ वर्क इनके अंदर होता है, तो इनके ड्यूटीज डिवाइड होती है हर एक एंट्स में। कैसे? जैसे क्वीन एंट होती है, 3 टाइप्स की एंट्स होती है, क्वीन एंट, मेल एंट एंड वर्कर एंट। अब इन तीनों टाइप्स की एंट के फंक्शन होते हैं। दे डू देयर वर्क सेपरेटली एंड सिंसियरली। क्वीन एंट क्या करती है बेटा? जस्ट शी लेज द एग्स। ये एग्स देती है, अंडे देती है और अपना केयर करती है। नेक्स्ट एंट, मेल एंट। मेल एंट क्या करती है? इनके विंग्स होते हैं और बहुत छोटी लाइफ होती है इनकी। ये भी जो ये एग्स होती हैं, जो क्वीन एंट देती है, उनका केयर करते हैं। वर्कर एंट का सबसे ज्यादा काम होता है बेटा, वर्कर से ही पता चल रहा है जो काम करते हैं। वर्कर एंट जो होते हैं, एक तो ये गार्ड करते हैं, जो इनके अंडे होते हैं एंट्स के, जो इनका घर बना होता है। ये जनरली सॉइल के पास एक बहुत छोटा सा एंट हिल बना के रखते हैं इस तरीके से। ये ऐसे मिट्टी के आपने देखे होंगे, सॉइल के बने होते हैं, इनको हम एंट हिल्स कहते हैं। एंट हिल्स में इनके अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं जहां पे ये एग्स रहते हैं, और वर्कर एंट्स इनकी रखवाली करते हैं और इस एरिया को साफ भी रखते हैं बेटा। हम जैसे अपने घर को साफ रखते हैं ना, ये वर्कर एंट भी किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचाते और गंदगी नहीं करते हैं, सफाई रखते हैं अपने नेस्ट की। दे लैक विंग्स अनलाइक क्वीन एंड मेल एंट्स। और जो वर्कर एंट्स होती है, इनके विंग्स नहीं होते हैं। बेटा यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्वीन एंट, मेल एंट एंड वर्कर एंट। ये तीनों डिफर करती हैं। क्वीन एंट सबसे ज्यादा साइज में बड़ी होती है, फिर मेल एंट और वर्कर एंट सिमिलर सी होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि वर्कर एंट के विंग्स नहीं होते, दे आर विंगलेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट इज हनी बी। हनी बीज भी बेटा, देर आर 3 kinds of honey bees. First is queen bees, next male bees and last is worker bees. Like ants, इनका भी काम सेम होता है बेटा। क्वीन बीज lay the eggs, ये सिर्फ अंडे देती है।
मेल बीज क्या करते हैं, ये एग्स देने में हेल्प करते हैं क्वीन बी की, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रोन बी. ओके, एंड लास्ट वन इज वर्कर बी. वर्कर बी भी लाइक एंड्स, वर्कर एंड्स की तरह ही ये भी अपने जो छत्ता होता है इनका, बिहाइव होता है, उसकी रक्षा करते हैं कि कोई भी आके उसको नुकसान ना पहुंचा दे. बिहाइव, ये देखो मैंने बना रखा है, इस तरीके से होता है मधुमक्खी का जो बिहाइव होता है. ओके बेटा, these are some other social animals like elephants, zebra, lions and giraffe. They also live in groups. That's why they are called social animals. Why they live in groups? Because to protect themselves from enemies. दुश्मन से अपना बचाव करने के लिए ये ग्रुप्स में रहते हैं. और आपको तो पता है यूनिटी में शक्ति होती है बहुत, जितना ग्रुप्स में रहते हैं उतने ये शक्तिशाली हो जाते हैं, और जानवर कोई भी अटैक अगर करे या कोई एनिमी इनका दुश्मन अटैक करे तो ये अपना बचाव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज टू ग्रूम द यंग वंस. अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी ग्रूमिंग करने के लिए उनकी केयर करते हैं, इसीलिए ये ग्रुप में रहते हैं. बीच में यंग वंस रहते हैं और साइडों में, साइड्स में एलिफेंट्स या कोई भी एनिमल जो बड़े होते हैं एज के, वो साइड्स में चलते हैं. आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा कि एलिफेंट्स या ज़ेब्रास या जिराफ, कोई भी जो सोशल एनिमल्स होते हैं, ये जब ग्रुप्स में चलते हैं तो बीच में इनके छोटे छोटे यंग वंस रहते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर केयर हो जाती है. लास्ट इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. ये लोग बेटा मिल के रहते हैं, और जब मिल के रहते हैं तो इनके बीच पक्की फ्रेंडशिप होती है, पक्की दोस्ती होती है. तो ये जब अब खाना सर्च करते हैं या पानी की सर्च में जाते हैं तो ये ग्रुप्स में जाते हैं. तो ये भी एक रीजन है इनका ग्रुप्स में रहने का. बेटा, वी विल डू द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स. यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ इंसेक्ट. अब बेटा ढूंढो इसमें इंसेक्ट्स के नेम. यस, ग्रास हॉपर. ग्रासहॉपर, GRASSHOPPER. ग्रासहॉपर माने टिड्डा. आपको ग्रीन ग्रास में ज्यादातर दिखता है, ये इस तरह का होता है बेटा, ग्रीन कलर का. नेक्स्ट बेटा ट्राई करो. यस, एंट, ANT, एंट. एंट, ANT, एंट माने चींटी. बेटा घर में दिखती है ना जब मीठा गिर जाता है कुछ, तो ये भी एक सोशल इंसेक्ट है क्योंकि ये ग्रुप्स में मिलती है आपको. नेक्स्ट नेम ऑफ द इंसेक्ट इज बी. BEE, मधुमक्खी. बेटा कैसी होती है देखने में, ये देखो, ये इमेज मैंने ली है नेट से. ये भी सोशल इंसेक्ट होती है बिकॉज दे लिव इन ग्रुप्स. Last name of insect is termite. 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 Termite माने दीमक. ये देखो इसकी इमेज ऐसी होती है. इसको व्हाइट एंट भी बोलते हैं बेटा, ये वुड में लगता है. ओके, कम टू द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Ants and bees are social insects. They work collectively as a social unit. जो एंट्स और बीज होते हैं वो सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं और ये मिल के काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्स एंड हनी बीज आर ऑफ 3 टाइप्स. जो एंट्स और हनी बीज होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज फीमेल वर्कर्स. जो वर्कर्स होते हैं वो फीमेल्स ही होती है बेटा. नेक्स्ट मेल honey bee or ants and queen ant or queen honey bees. Last point is ants and bees live and move in groups. Groups में घूमते हैं बेटा ये, और रहते भी साथ साथ हैं ants and bees. और ये साथ साथ क्यों घूमते हैं, क्यों ग्रुप्स में रहते हैं? To protect young ones and in search of food. They care their young ones and अपना फूड सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए ये ग्रुप्स में रहते हैं. So beta, what we learn from this chapter?
that bees and ants are very hard-working insects. We should learn to work hard from them. आपने देखा होगा जो ये एंड्स होती हैं या हनी बीज होती हैं या कोई भी सोशल इंसेक्ट्स आप देखोगे या एनिमल्स को देखोगे, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत से अपना खाना स्टोर करते हैं ताकि वो बैड कंडीशन में भी अपने लिए खाना बचा के रखें। आपने अपने घर में एंड्स को देखा होगा, निरंतर चलती रहती है। वैसे ही हमें भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। कोई भी अगर हम काम करें उसे पूरी लगन से करना चाहिए। This is the exercise part of this chapter. It is on page 64. Do it in your book with your pencil. Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you.